Swagatam to all. It is a matter of great honor and privilege to welcome you on the occasion of 100 years of Rashtriya Swayamsevak Sangh journey, an interaction with eminent personalities exclusively from bureaucracy. Sarsanga Chalak, Rashtriya Swayamsevak Sangh, Mania Mohanji is arriving onto the dais. So today's gathering is a unique in its composition and esteemed assembly of officers from the All India services, including former and serving IAS, IPS, IRS, IFS, IOPS, and retired chief secretaries, principal secretaries, CITS, CITs, and major generals, lieutenant generals from defense, and other eminent administrators who have dedicated their lives to the service of the nation. Your presence reflects the highest traditions of integrity, leadership, and commitment to the Bharat institutional strength and adds immense value and dignity to this historic occasion. We are especially blessed and deeply honored by the gracious presence of Param Pujniya Satsanga Chalakji of Rashtriya Swayamsevak Sangh, Manya Sri Mohanji Bhagwat. His vision for a values-driven, self-reliant and harmonious society continues to inspire citizens across the globe. The program provides a rare opportunity for thoughtful interaction, reflection, and collective dialogue on issues of national importance, guided by wisdom, experience, and shared commitment to the larger good. On behalf of Rashtriya Swayamsevak Sangh, Telangana, it is my privilege to extend a heartfelt welcome to all the distinguished invitees present here today. Before arrival of our guest, I would like to briefly introduce Sangha functionaries who are present here in the audience. We are honored to have several dignitaries with us today. Adaraniya Shri Bhagaya Garu, Akhila Bharatiya Karyakarni Sadasyilu. He headquartered at Guwahati. Earlier, Shri Bhagaya ji served as All India Joint General Secretary of RSS. He is a Sangha Pracharak. A Pracharak in RSS is a full-time volunteer who devotes his life and committed to organizing and serving society through Sangha vision. Adaraniya Sunil Ambekar ji, Sangha Pracharak, Akhila Bharatiya Prachara Pramukh. Adaraniya Bharat Bhushan ji, Akhila Bharatiya Sah Sampark Pramukh. Adaraniya O.K. Mohanan ji. I think we have Manya Sarsanga Chalak ji arriving onto the venue. I invite our guest, Param Pujniya Sarsanga Chalak, Manya Sri Mohanji Bhagwat ji onto the dais and do Bharat Mata Puja. Along with him, Manya Sri Dusi Ramakrishna Rao Garu, Saha Kshetra Sangha Chalak, Burla Sundar Reddy Garu, Telangana Pranta Sangha Chalak, Dr. Ganjam Krishna Prasad Garu, Sambhag Sangha Chalak. I request all the guests to be seated. I request now Adaraniya Shri Kacham Ramesh ji, Pranta Karyavaha, General Secretary of RSS Telangana Pranta, to introduce the guest on the dais. రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘ శతాబ్ది పురస్కరించుకొని భాగ్యనగర్ మహానగరంలో జరుగుతున్నటువంటి ప్రతిష్ఠిత వ్యక్తుల కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి మీ అందరికీ వినమ్రపూర్వక స్వాగతం. వేదికపై ఉన్నటువంటి పెద్దల్ని పరిచయం చేస్తాను. రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘం యొక్క పరమ పూజనీయ సరసంగ చాలక్ జీ మాననీయ డాక్టర్ మోహన్ రావు భాగవత్ గారు మన మధ్యలో వేదికపైన ఆసీనులై ఉన్నారు.
సంఘంలో సంఘచాలక్ అంటే సంఘాన్ని నడిపించేవారు, అధ్యక్షులు అని బయటి భాషలో మనం మాట్లాడుతుంటాము. వారిని సంఘంలో సంఘచాలక్ అని అంటుంటాం. అలాగే సంఘచాలక వ్యవస్థ అన్ని స్థాయిల్లో ఉంటుంది. అలాగే వేదిక మీద ఉన్నటువంటి మరొక సహసంఘ చాలకులు మన దక్షిణ మధ్య క్షేత్ర సహసంఘ చాలకులు మాననీయ శ్రీ దూసి రామకృష్ణారావు గారు. సంఘంలో దేశం మొత్తాన్ని 11 క్షేత్రాలుగా విభజించారు. దక్షిణ మధ్య క్షేత్రంలో కర్ణాటకలో ఉన్నటువంటి 2 ప్రాంతాలు, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ కలిపి దక్షిణ మధ్య క్షేత్రం అంటాము. ఈ క్షేత్రానికి మాననీయ రామకృష్ణారావు గారు సహసంఘ చాలకుగా ఉన్నారు. అలాగే సంఘ ప్రేరణతో జరిగేటువంటి విద్యాభారతి పాఠశాలలు అఖిల భారత స్థాయిలో వారు ఉపాధ్యక్షులుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. తెలంగాణ ప్రాంతం యొక్క మాననీయ సంఘ చాలకులు శ్రీ బర్ల సుందర్ రెడ్డి గారు. వారు భాగ్యనగర్ వాసులు. విద్యుత్ విభాగంలో సూపరింటెండెంట్ ఇంజనీర్గా పనిచేసి పదవీ విరమణ పొందారు. వారు వేదిక మీద ఉన్నారు. భాగ్యనగర్ మహానగరం మొత్తాన్ని భాగ్యనగర్ సంభాగ్ అని అంటుంటాం సంఘంలో. ఈ సంభాగ్కి మాననీయ సంఘ చాలక్గా డాక్టర్ గంజాం కృష్ణప్రసాద్ గారు. వారు భాగ్యనగర్లోనే లాలాపేట వాస్తవ్యులు, ప్రముఖ ఆయుర్వేద వైద్యులు. వారు ఈ మహానగరానికి సంఘ చాలకులుగా ఉన్నారు. మనల్ని ఉద్దేశించి పరమ పూజ్య సరసంఘ చాలక్జీ మార్గదర్శనం చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. माननीय सहक्षेत्र संघ चालक जी, माननीय प्रांत संघ चालक जी, माननीय संभाग संघ चालक जी, आदरणीय वेंकैया जी, हमारे उपराष्ट्रपति जी और अन्य सभी उपस्थित सुधीजन, माता भगिनी, संघ कार्य के 100 वर्ष पूर्ण हुए, उसके निमित्त ये कार्यक्रम है। ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हमारे अखिल भारतीय अधिकारियों के प्रवास में सभी प्रमुख जगह पर हो रहा है, क्योंकि आवश्यकता लगती है कि संघ के बारे में, यद्यपि उसका नाम बहुत प्रसिद्ध है आजकल, भारत के आरएसएस को दुनिया में भी लोग जानते हैं नाम से, परंतु संघ कार्य का स्वरूप क्या है, दृष्टि क्या है, स्वयं से करते क्या है, सिस्टम क्या है, इसके बारे में बहुत से भ्रम है, अस्पष्टता है। उसको दूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि संघ का काम बहुत बड़ा हो गया। एक तरह से अपने देश में अंग्रेजी में कहते हैं सेंटर स्टेज, ऐसी पोजीशन संघ की है। और उसके कारण स्वाभाविक समाज में बहुत सारी अपेक्षाएं भी रहती है। जिनसे अपेक्षा करना है उनको जानने से ठीक अपेक्षा की जा सकती है। अगर हम उनको जानते नहीं तो फिर जो अपेक्षा करेंगे वो सही होंगी, ऐसा नहीं है। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर में देने वाला हूं अगले सत्रों में। तो प्रश्न देखने से भी मेरे ध्यान में आता है कि इन सब बातों की स्पष्टता की आवश्यकता है, और इसलिए ऐसी कुछ बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक तरह से वो प्रश्नोत्तर सत्र की प्रस्तावना हो जाएगी। तो संघ के बारे में गलतफहमियां बहुत है, क्योंकि संघ को जानने के लिए फ्रॉम नोन टू अननोन ऐसा नहीं जान सकते, क्योंकि इस प्रकार का कोई काम आज दुनिया में है नहीं, और अपने देश में कम से कम तथागत बुद्ध के बाद हुआ नहीं। और इसलिए उसको समझाने के लिए कंपेरेबल नोन दूसरा वो उपलब्ध नहीं है। गगनम गगनाकारम सागरम सागरोपमा, इस प्रकार का है। गगन कैसा है तो गगन जैसा ही है, उतना बड़ा एक्सपांस कोई दूसरा नहीं है। सागर का भी ऐसा ही है, उतना बड़ा एक्सपांस पानी का कहीं नहीं है दुनिया में। इसलिए संघ को जानने के लिए भी दूसरा रास्ता लेना पड़ता है। सुन के, पढ़ के या ऊपर ऊपर देख के भी
कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अब हम लोग हाथ में लाठी लेकर लाठी काठी वगैरह सीखते हैं, लेकिन हमारा कोई फिजिकल एजुकेशन संस्थान नहीं। हम लोग रूट मार्चेस वगैरह करते हैं, लेकिन हम पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं। हमारे स्वयंसेवक 1,30,000 से ऊपर छोटे बड़े सेवा कार्य अपना पैसा और अपना समय खर्चा करके और समाज से सहयोग लेके बिना सरकारी पैसे के चलाते, परंतु हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नहीं। तो क्या है ये जानना पड़ता है। संघ के स्वयंसेवक बहुत सारे काम करते हैं। संघ के स्वयंसेवक जीवन के सब आयामों में आ जाए, सक्रिय है, विभिन्न संगठनों के अंदर से वो काम कर रहे हैं। कुछ संगठन उन्होंने बनाए हैं, कुछ संगठन पहले से थे उसमें जगह है, समाज के अन्य लोगों को साथ लेकर संगठन चलाते हैं। उनको देख के आप अगर संघ की कल्पना करने जाएंगे तो वहां भी कंफ्यूजन होगा, क्योंकि उनका वो काम अलग है, वर्किंग फील्ड अलग है, वर्किंग मेथोडोलॉजी अलग है। संघ का विचार है, संस्कार है, बस इतना है। स्वयंसेवकों का और संघ का संबंध है, लेकिन संगठन सब अलग, स्वतंत्र, स्वायत्त और स्वावलंबी होते चले जाते हैं। मीडिया में प्रचार होता है कि हम रिमोटली या डायरेक्टली उनको कंट्रोल करते हैं, वो गलत बात है। ऐसा होता नहीं है। उस फील्ड में उनका एक्सपीरियंस है, वो एक्सपर्ट है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम तो अपनी शाखा में जो स्वयंसेवक है उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते, तो कंट्रोलिंग के लिए कुछ चाहिए, पावर। संघ का काम पावर बेस पे नहीं चलता है, दोस्ती और प्रेम के आधार पर चलता है। मनुष्य मनुष्य से जुड़ता है और एक ध्येय के लिए खुद होके कुछ करता है, मन मर्जी की। लेकिन उन कामों में से आप अगर देखेंगे कि संघ समझना है तो भ्रम हो जाएगा। और 75 वर्षों से कई प्रकार का अपप्रचार संघ के बारे में चल भी रहा है, और संघ का काम संस्कार का है, तो प्रचार के फील्ड में हम गए नहीं कभी। जब गए तब बहुत लेट गए। 80s में हमारा प्रचार विभाग आया, इमरजेंसी के बाद, और इसलिए हम उसमें पीछे हैं, तो गलतफहमी अभी बनती है। इसलिए संघ को जानना अनुभव से, ये हम कर सके इसलिए आपको कुछ जानकारी दे रहा हूं। नहीं, परीक्षा करनी है तो विष की परीक्षा नहीं की जाती, तो जिसकी परीक्षा कर रहे को विष नहीं है, परीक्षा करने लायक है, इतना आपको पता चले, इतना मैं बताने वाला। और प्रारंभ करता हूं, संघ क्या है ये बाद में बताता हूं, संघ क्या नहीं है ये पहले बताता हूं। संघ किसी एक परिस्थिति की रिएक्शन में तैयार नहीं हुआ, संघ किसी के कंपटीशन में तैयार नहीं हुआ, संघ किसी के विरोध में तैयार नहीं हुआ है। वरना देश के हित में 1857 बाद जो काम चले थे, उन सब कामों को पूर्ण करने वाला, फुलफिल करने वाला काम संघ का है। 1857 में स्वातंत्र्य युद्ध हम हार गए, तो अपने देश में विचार मंथन चला कि ऐसा क्यों हुआ। मुट्ठी भर लोग हम पर राज कर रहे, दूर देश के, यहाँ की आबोहवा जिसको अनुकूल नहीं है। हम अपने देश में, हमारे राजा हैं, हमारी सेनाएं हैं, तात्या टोपे, बाबू कुंवर सिंह जैसे जनरल्स हैं, झांसी की रानी, नाना साहब पेशवे जैसे मर्द लोग हैं, पराक्रमी लोग हैं, फिर भी हम हार गए। तो उस मंथन में से एक विचार प्रवाह ये निकला कि अभी हार गए तो क्या हुआ, ट्राई 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 अगेन, यही रास्ता है। अंग्रेज अपनी सेना के बल से, शस्त्र बल से राज्य कर रहे, हाथ में शस्त्र लेके उनको भगाना, और इसलिए सशस्त्र प्रतिकार का क्रांतिकारक मार्ग, रिवॉल्यूशनरी, वो प्रवाह चला, 1945 तक चला। सुभाष बाबू जब अंतर्धान हो गए उस समय फिर वो मंद हो गया, और स्वतंत्रता के बाद उसका प्रयोजन नहीं था। सावरकर जी ने तो विधिवत अपने अभिनव भारत का समापन भी कर दिया। लेकिन उस प्रवाह में से हमको
कितने ही दैदीप्यमान ऐसे व्यक्तित्व मिले जो आज भी हमको प्रेरणा देते हैं। दूसरा प्रवाह था ऐसा सोचने वालों का कि भाई सशस्त्र संघर्ष करके हम हार क्यों गए, क्योंकि हमारा संघर्ष केवल लड़ने वालों का चला, सामान्य जनता पॉलिटिकली अवेयर नहीं है, तो उनको पॉलिटिकली अवेयर करना पड़ेगा, पॉलिटिकल एक्टिविटी में लाना पड़ेगा। स्वतंत्रता के लिए सब लोग जब तक रास्ते पर नहीं आते तब तक अंग्रेज की पराजय नहीं होती। और इसलिए अंग्रेजों ने सर A.O. ह्यूम, एलन ह्यूम थे, 1857 के संघर्ष में उनको भागना पड़ा था, तो एक सेफ्टी वॉल के नाते उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी, लेकिन हमारे आज़ादी के नायकों ने उसको ही हाथ में लिया, उसको आज़ादी की लड़ाई का हथियार बनाया, और ये राजकीय प्रवाह चला आगे चल के, उसमें से और भी पार्टियां निकली, लेकिन पर्याप्त राजकीय जागृति लोगों में करके और सबको स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए रास्ते पर लाने में वो यशस्वी रहा। लेकिन स्वतंत्रता के बाद वो बात नहीं रही, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जागृति थी, अंग्रेज चले गए, अब किसके खिलाफ लड़ना, तो आपस में ही लड़ने लगे। और फिर आजकल की लड़ाई में देयर इज नो रूल, देयर आर नो रूल्स, एवरीथिंग इज फेयर, ऐसा चलता है। तो क्या परिणाम है हम देखते हैं, उसके बारे में मैं बोलता नहीं हूं। तीसरा प्रवाह था कि भाई अंग्रेजों को परास्त करना है तो पहले अंग्रेजों के बराबरी का समाज होना चाहिए ना। हम भेदों से ग्रसित है, रूढ़ी परंपराएं हमारे यहाँ, अंधश्रद्धाएं सब चल रही है। जब तक समाज का सुधार नहीं होता, समाज अंग्रेजों से लड़ने लायक नहीं बनता है। और इसलिए रिफॉर्म मूवमेंट्स शुरू हुए, राजा राम मोहन राय से, उसका इतिहास हम मानते हैं, उसके भी पहले से है, लेकिन सारे संत वंत वो रिफॉर्म लाने वाले ही लोग थे। लेकिन आधुनिक रिफॉर्म्स राजा राम मोहन राय के समय से चल रहे हैं, लेकिन वो धारा चली, अभी भी चल रही है, लेकिन इट बिकेम एन आइलैंड विद इन द सी ऑफ अदर्स। हमारे नागपुर के पास एक विलेज है वर्धा डिस्ट्रिक्ट में, वहां 38 कास्ट थी, वहां एक महात्मा आ गई और उन्होंने जाति निर्मूलन का काम किया। महात्मा थे तो उनको सम्मान वगैरह तो सब मिला, उनकी बातें सब लोग सुनते थे। लेकिन आज ऐसा है कि वो 38 कास्ट है और कास्ट न मानने वालों की 39th कास्ट एक और है। ऐसा कुछ जो नहीं होना चाहिए, क्यों हुआ क्या हुआ अलग बात है, लेकिन हुआ। और चौथा प्रवाह था जो कहते थे कि भाई गो टू द बेसिक्स, हम अपने आप को भूल गए, अपनी परंपरा को भूल गए, हमारा जो है उसको भी हम नहीं समझते, हमने व्यवस्थाओं को भेद बना दिया, जात पात का सब करते हो, हमारे शास्त्रों में नहीं है, तो चलो वापस, हमारी सीख क्या है। स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक, स्वामी विवेकानंद, इनके नेतृत्व में ये धारा चली, तो वो अभी भी चल रही है, लेकिन उसका भी एक स्कोप लिमिटेड हो गया। डॉक्टर हेडगेवार जो संघ के संस्थापक थे, वो बचपन से देशभक्ति उनको जन्म से मिली थी, ही वॉज ए बॉर्न पेट्रियट। विक्टोरिया रानी के राज्यारोहण समारोह का उत्सव, ब्रिटिश के हम गुलाम थे इसलिए हमारे देश में भी हुआ, सरकारी स्कूलों में मिठाई बांटी गई, इनको मिली, ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे थे 3rd स्टैंडर्ड में, वो मिठाई उन्होंने फेंक दी कूड़ेदान में। शिक्षकों ने पूछा ये क्या है, क्यों फेंका, तो उन्होंने कहा कि भाई हमको गुलाम बनाने वालों की रानी का राज्यारोहण हमारे लिए उत्सव का विषय नहीं है, शोक का विषय है। इट इज नॉट ए डे ऑफ सेलिब्रेशन, इट इज कंडोलेंस डे फॉर अस। और उसके लिए जो मिठाई बांटी जाती है वो हमारे लिए जहर है। ये क्लास 3 में पढ़ने वाला बालक बोल रहा है, ऐसे होते। और इसलिए 1905-6 में जब वो 10th क्लास में पढ़ रहे थे तो वंदे मातरम का आंदोलन देश में शुरू हुआ था, तो उन्होंने नागपुर के विद्यालयों में वंदे मातरम आंदोलन ऑर्गेनाइज किया। स्कूल इंस्पेक्शन होते समय इंस्पेक्टर आएगा, हर क्लास में
वंदे मातरम, ऐसा उसका स्वागत होगा। तो तुरंत कंप्लेंट हुई, स्कूल बंद हुए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी लगी। 4 महीना इन्वेस्टिगेशन चला, कौन था पता नहीं चला। इसलिए फिर गार्डियंस, सरकार के लोग, पुलिस सब बैठकर निश्चित हुआ कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए, स्कूल शुरू करना चाहिए। उसके लिए एक नॉमिनल अपॉलॉजी प्रत्येक स्टूडेंट ने देना, क्योंकि करने वाले को उन्हें पता नहीं था, तो एवरीबॉडी वाज संशयित। इसलिए नॉमिनल अपॉलॉजी यानी गेट पर मास्टर साहब खड़े रहेंगे, स्कूल में जाते समय वो पूछेंगे गलती की ना, तो यू हैव टू नॉड और यू हैव टू से यस, बस इतना करने से क्लास में प्रवेश। लेकिन नागपुर में 2 स्टूडेंट थे जिन्होंने ये भी नहीं किया। उन्होंने कहा हम सपने में भी भारत माता की जय कहेंगे, वंदे मातरम कहेंगे, ये तो हमारा अधिकार है, वो करना गलत है ऐसा हम सपने में भी नहीं कहेंगे। तो प्रत्यक्ष, प्रतीकात्मक या अप्रत्यक्ष माफी, इसका सवाल ही नहीं उठता। तो उनको रस्टिकेट किया गया। डॉक्टर हेडगेवार उसमें एक थे। ऐसे विद्यार्थियों के लिए उस समय राष्ट्रीय विद्यालय रहते थे, उसमें गए, यवतमाल नाम का स्थान है वहां पर, लेकिन वहां भी ब्रिटिशों ने बंद कर दिया विद्यालय को। तो प्राइवेट परीक्षा देके फर्स्ट क्लास में मैट्रिक पास हुए। उनके स्टूडेंट करियर में हमेशा वो फर्स्ट क्लास में आए, पहले 10 में आए, और ऑल द वाइल ही वाज पार्टिसिपेटिंग इन एवरी मूवमेंट that was going on for emancipation of our society, country. ऐसे वो थे। तो नागपुर के उस समय के लीडर्स ने उनका ये स्पार्क पहचान कर उनको कलकत्ता भेजा, पैसा वैसा जमा करके मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए। फीस और ट्रैवल का इंतजाम किया, बाकी सब इनको करना पड़ा। थे तो बड़े गरीब, अनाथ हो गए थे बचपन में, कमाने वाला कोई नहीं था। उनके पिताजी माताजी एक ही दिन में प्लेग के रोगियों की सेवा करते करते 1 घंटे के अंतर से चल बसे। तो तब से तो बहुत हार्डशिप में बड़े हुए थे, तो आदत तो थी उसकी। तो जाके जैसे तैसे उन्होंने अपने रहने खाने का इंतजाम कर लिया। लेकिन मेडिकल की पढ़ाई ये बहाना था, असली उद्देश्य था वहां क्रांतिकारकों की कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, अनुशीलन समिति। तो उसका कॉन्ट्रैक्ट करके भारत के इस भाग में क्रांति कार्य को शुरू करना। तो दोनों काम उन्होंने अच्छे किए। मेडिकल की पढ़ाई भी करके फर्स्ट क्लास में पास हो गए, और रिवॉल्यूशनरी वो जो अनुशीलन समिति थी उसके कोर कमेटी मेंबर बने, और राजस्थान से तेलंगाना तक के भूभाग में क्रांतिकारकों को ऑर्गेनाइज करना, लाना बसाना, उनके उदर निर्वाह की व्यवस्था, शस्त्र वगैरह उनको देना, ये सब ऑर्गेनाइजर का काम उनके जिम्मे था। लेकिन 4 साल ये होते होते वो आंदोलन फेल हो गया, अपनी कुछ अंदर की कमियों के कारण डिफ्यूज हो गया। ब्रिटिशों को पता लग गया, तो इनके एक्शन के पहले ही उनकी प्रिवेंटिव एक्शन होती थी, अरेस्ट होते थे। तो वो धीरे धीरे फिजल आउट हो गया। इसलिए उन्होंने सोचा कि देश के लिए तो करना है, क्योंकि प्रतिज्ञा की थी इस जन्म में अपने जीवन का विचार नहीं करना, ये जन्म देश के लिए। तो विवाह नहीं करना था, पैसा नहीं कमाना था, तो आंदोलन में गए। उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो उसके प्रचार के लिए गांव गांव गए, विदर्भ में भाषण दिए, बड़े फायरी स्पीकर थे। तो उन पर सेडिशन का मुकदमा चला। सेडिशन के मुकदमे में कोर्ट, अंग्रेजों के उस समय के कोर्ट्स कांगारू कोर्ट से ही थे, तो इनकी पैरवी करने वाले वकीलों ने निषेध के नाते कहा कि केस हम नहीं लड़ेंगे, क्योंकि आपको सजा देनी ही है, लड़ने में कोई मतलब नहीं। इन कंडेमनेशन ऑफ योर एटीट्यूड वी रिक्यूज आवरसेल्व्स फ्रॉम दिस केस। ऐसा हुआ, तो इनको लड़ना पड़ा, तो इन्होंने बचाव दिया। तो बचाव का प्रारंभ यहां से किया कि एक कोई लॉ साइट कीजिए जिसके आधार पर यूरोप से आकर ब्रिटिश हम पर राज कर रहे। स्वतंत्रता तो सबका
मूलभूत अधिकार है, ये जगन्मान्य बात है। तो अंग्रेज किस कानून के तहत हम पर राज्य कर रहे हैं? ऐसा कोई कानून नहीं है। इसलिए अंग्रेजों का राज्य इल्लीगल है, इसलिए आपका कोर्ट भी इल्लीगल है। आपको मेरा न्याय करने का अधिकार नहीं है। मैं आपकी सत्ता मानता नहीं हूं। मैंने कुछ गलती नहीं की, लोगों को बताया स्वतंत्रता क्या है, वो सबका अधिकार है, और अपने अधिकार को प्राप्त कैसे करना। तो आप मुझे सजा नहीं दे सकते। यू डोंट हैव एनी अथॉरिटी लीगली। तो जज ने उनको 1 ईयर रिगरस इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस देते समय रिमार्क लिखा कि इनका बचाव का भाषण इनके जिन भाषणों के कारण इन पर ट्रायल है उससे ज्यादा सेडिशियस है। ऐसे वो थे। तो ये सब करते समय उनको मौका मिला सबसे संपर्क करने का। सभी मोमेंट्स में, चारों प्रवाहों में वो एक्टिव थे। तो लोकमान्य तिलक जी, सावरकर जी, महात्मा गांधी जी, सुभाष बाबू, भगत सिंह, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय जी, इन सबके साथ उनकी संपर्क आए, चर्चाएं हुई। और उन चर्चा में से इनको ध्यान में आया, इनका भी अपना अनुभव था, अध्ययन था, चिंतन था, इनका भी निष्कर्ष वही था। इन सब लोगों को लगता था कि जो काम हमने हाथ में लिया है वो तो पूरा होगा, क्योंकि हम अपना जीवन लगा रहे हैं आज ना कल। ये स्वतंत्रता की ही बात है, तो स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन फिर हम गुलाम नहीं होंगे इसकी गारंटी क्या है? क्योंकि ब्रिटिश वेयर नॉट द फर्स्ट टू एनस्लेव अस। सिकंदर के पहले से आक्रमण चल रहे थे लगातार, और ब्रिटिशों का नंबर 7वां 8वां आता है। मुट्ठी भर लोग दूर से आते हैं, देखते देखते हमको जीत लेते हैं, हम उनको खदेड़ देते, फिर गुलाम होते। इसका मतलब हमारे समाज में कुछ कमियां है, जिसको दूर करके ये समाज एकता और गुणवत्ता वाला समाज जब तक नहीं बनाते, देश का भाग्य ठीक नहीं होगा। तब तक देश के भाग्य में बार बार लड़ना यही होगा। बाबा साहब अम्बेडकर साहब के 2 भाषण हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट करते समय के। उसमें एक में उन्होंने ये कहा है कि बड़े प्रयास से ये स्वतंत्रता आई है लंबे समय के बाद। उन्होंने तो 1000 साल के बाद ऐसा कहा है। ये स्वतंत्रता लाई है बड़ी परिश्रम से। हमको समझना चाहिए किसी इन्वेडर ने हमको अपनी ताकत के भरोसे गुलाम नहीं बनाया, बना नहीं सके। हमारी आपसी फूट के कारण वो जीत सके। और आज हम इस पार्लियामेंट में अलग अलग कैंपों में अलग अलग विचारों के लोग बैठे हैं और एक दूसरे का विरोध वगैरह करेंगे, प्रजातंत्र की पद्धति है। परंतु अगर हम समाज में बंधुभाव पैदा करने की चिंता नहीं करेंगे तो मुझे डर है कि हिस्ट्री विल रिपीट। ऐसी स्थिति में संविधान आपकी रक्षा नहीं कर सकेगा। ये चिंतन सबके मन में था। आप रविंद्रनाथ ठाकुर जी से सुभाष बाबू तक, गांधी जी, तिलक, सावरकर, जितने नाम मैंने लिए, जितने एक्टिविस्ट हुए, सर मानवेंद्रनाथ रॉय जैसे भी, सबके लिखने बोलने में ये बात है। सबको लगता था कि ये होना चाहिए, लेकिन करने वाला कौन? क्योंकि हमने जो मिशन लिया है हमारी पूरी एनर्जी उसमें जाएगी, किसी को इसको करना चाहिए। तो डॉक्टर हेडगेवार ने सोचा कि अगर सब लोग बिजी है और ये काम होना चाहिए, क्योंकि ये काम होने से इशू सदा के लिए खत्म हो जाएगा, तो दी वर्क टू फुलफिल आवर वर्क्स, ये कैसे करना, मैं प्रयोग करता हूं, एक्सपेरिमेंट करता हूं, और मैं उसको करने का प्रयास करता हूं। इसलिए 8-10 साल उन्होंने प्रयोग किए। प्रयोगों के बाद डिक्लेयर किया 1925 विजयादशमी को कि संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करने वाला संघ आज से शुरू हो गया है। जो नए कार्यकर्ता थे उनके पास, नए ही थे सब, अधिकांश विद्यार्थी,
क्योंकि इन बाकी सब मामलों में सब लोग एंगेज थे, तो नई पीढ़ी उनके पास थी, तो उनके हाथ में दे दिया। उन्होंने पूछा क्या करना, तो बैठो और तय करो। तो कार्यकर्ताओं का सामूहिक चिंतन और प्रयोग, उस अनुभव में से एक एक बात पक्की होते होते संघ स्थापना के 14 साल बाद 1939 में सारे अनुभव का विचार करके ये एक मेथोडोलॉजी पक्की हुई। उस मेथोडोलॉजी का नाम है आरएसएस। संघ यानी अनेक संगठन है, वो नहीं है। उसमें स्वयंसेवक है, वो पक्के संघ के, लेकिन वो स्वतंत्र अलग स्वायत्त है। संघ यानी ये मेथोडोलॉजी है, जिसको हम शाखा कहते हैं। 1 घंटे का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व्यायाम, जो अपने को देश का काम प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक करने के लिए तैयार करता है। वो संघ की शाखा, संघ के स्वयंसेवक, संघ के घर, ये तीनों संघ के है। संघ देखना है तो इनको दीजिए, देखिए। बाकी सब स्वयंसेवकों ने किया है, क्योंकि ये काम ऐसा है, संगठन करना पूरे समाज का। संघ समाज के अंदर प्रभावी संगठन नहीं करना चाहता, बहुत है, और एक झंडा नहीं चाहिए संघ को। संघ पूरे समाज को ही संगठित करना चाहता है, क्योंकि देश का भाग्य बदलना है तो पूरे समाज को तैयार होना पड़ेगा। नेता, नारा, नीति, पार्टी, अवतार, सरकार, विचार, महापुरुष, ये सब सहायक होते हैं। मालिक तो समाज है। मालिक सोएगा, नौकर काम नहीं करेगा। मालिक जागरूक रहेगा तो नौकर अपना अपना काम ठीक करेंगे। और इसलिए पूरे समाज को ही संगठित बनाना है। जो आज विरोध कर रहे हैं, उस समय विरोध कर रहे थे, ये सब भी आज ना कल जोड़ने हैं, संगठित करने हैं। ऐसा अगर करना है तो समाज के एक एक व्यक्ति तो सिखाना असंभव है। अभी 142 करोड़ है हम लोग, उसमें हिंदू अपने आप को कहने वाले 100 करोड़ भी मान ले तो कठिन है, लेकिन उसकी आवश्यकता भी नहीं है। समाज फैशन में चलता है। मेरी कॉलेज डेज में एक फिल्म आई थी, कूली, अमिताभ बच्चन की फिल्म, आपको मालूम है। तो कूली का काम उसने किया, तो रेड ट्यूनिक पहनता था, तो इकॉन था कॉलेज विद्यार्थियों का, तो सब कॉलेज विद्यार्थी रेड बुश शर्ट्स, रेड शर्ट्स पहनते थे। क्यों पहन रहे हैं? कूली। अरे उसने क्यों पहना? कुछ विचार नहीं, किसी और एग्जाम्पलरी व्यक्ति ने पहना तो फैशन बन गई। ऐसे ये सब जो गुण चाहिए, क्वालिटीज और एकता चाहिए, तो समाज के हर गांव में, हर मोहल्ले में अगर ऐसे केंद्र रहे, 10, 5, 15, 20, 30, 50, जो प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक जो उचित है वही कर रहे, समाज में जिनका जीवंत संपर्क है और समाज उनकी पारदर्शिता को देखकर उन पर विश्वास रखता है, ऐसे लोग जो करेंगे वो फैशन बनेगी और समाज वैसे ही चलेगा। समाज के प्रमुख लोगों को ऐसा होना पड़ेगा, या ऐसे लोगों को समाज का प्रमुखत्व लेना पड़ेगा। देशव्यापी कार्यकर्ता समूह इस प्रकार का खड़ा करने से समाज में वातावरण, समाज के आचरण में परिवर्तन सब हो जाएगा। और इसलिए एक एक ऐसा कार्यकर्ता गढ़ना पड़ेगा। इसलिए संघ का काम है व्यक्ति निर्माण। व्यक्ति निर्माण से वातावरण निर्मित, जिसमें समाज संगठित होता है। एकता और गुणवत्ता वालों का एग्जाम्पल चाहिए। आइडियल्स बहुत है, बट आइडियल्स आर लाइक स्टार्स विच वी कैन नेवर रीच। वी कैन प्लॉट अवर चार्ट्स अकॉर्डिंग टू देम, ऐसा वाक्य है। लेकिन जब प्लॉट करने जाते चार्ट को आइडियल्स के प्रकाश में, तो रास्ता दिखता है, वो तो कंटका किरण मार्ग है, उबड़ खाबड़ रास्ता, कितने ही संकट है, कांटे, सब है। तो सामान्य व्यक्ति हिम्मत नहीं करता। सामान्य व्यक्ति को साथी चाहिए, कोई अपने जैसा, थोड़ा अपने से आगे है,
उसके साथ जाता है, तब हिम्मत करता है। ऐसे एग्जाम्पलरी बिहेवियर वाले कार्यकर्ता सर्वत्र खड़े करना, उसके लिए व्यक्ति निर्माण करना, समाज का संगठन उससे होता है। और समाज में वातावरण उत्पन्न हुआ तो व्यवस्थाएं अपने आप बदल जाती है। कोई व्यवस्था अपने को बदलने की इच्छुक नहीं रहती। देयर इज ए रेजिस्टेंस टू चेंज इन ऑल सिस्टम्स। It requires pressure. That pressure is created by the society in such an atmosphere. तो व्यवस्था बदलती है। ये संघ का विचार है। व्यक्ति निर्माण से समाज परिवर्तन, समाज परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन। लेकिन समाज कौन सा? तो नाम दिया है संपूर्ण हिंदू समाज। वहां दूसरा प्रश्न आता है, हिंदू क्यों? हिंदू रिस्पॉन्सिबल है हिंदुस्तान के लिए। देश का कुछ भला बुरा हो गया तो कॉलर तो हिंदू की ही पकड़ेंगे, बाकी लोग भाग सकते हैं, हिंदू नहीं भाग सकता, उसकी दूसरी जगह नहीं है। दूसरी बात है कि इस देश का इतिहास हिंदू है, परंपरा से हिंदू यहां रहते आया। उसने एक विशिष्ट स्वभाव उत्पन्न किया। हमारे पूर्वजों को जब अस्तित्व की एकता का सत्य मिल गया तो उन्होंने सोचा सब अपने हैं और इस सत्य को पाने से शाश्वत सुख मिलता है, तो ये संदेश सबको देना चाहिए। उस सत्य के आधार पर एक धर्म तत्व की कल्पना हुई। उसके 4 पैर बताए, सत्य, करुणा, शुचिता, तपस। उसके आधार पर वैसा आचरण पीढ़ी दर पीढ़ी हो, इसलिए संस्कारों की एक व्यवस्था बनी जिसमें से संस्कृति उपजी, जिसको हम भारतीय संस्कृति कहते हैं। वो तब से चली आ रही है। दुनिया को ये सारा ज्ञान देने के लिए एक एपरेटस के नाते हमारा राष्ट्र उत्पन्न हुआ। हम नेशन नहीं है, नेशन स्टेट होता है। वी आर नॉट ए नेशन स्टेट। स्टेट्स बदलते रहे, हमारा नेशन चलता आया है। एक स्टेट था तब भी हम थे, मल्टीपल स्टेट्स थे, साम्राज्यम, बहुजन, स्वराज्यम, वैराज्यम, पारमेष्ठम आदि आदि लिस्ट है। इतने सारे प्रकार थे गवर्नेंस के, तब भी हम वही एक राष्ट्र थे। हम स्वतंत्र थे तब तो हम राष्ट्र थे ही, लेकिन मुगल आए तो भी हम वही रहे, ब्रिटिश आए तो भी हम वही राष्ट्र रहे। इनके जाने के बाद वो प्रवाह फिर से चल रहा है। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, उसकी संस्कृति हिंदू संस्कृति है। भारतीय भी कहते हैं, समानार्थी शब्द है, भारतीय और हिंदू ये सिनोनिम है। इंडिक सिनोनिम है, आर्य सिनोनिम है। कभी मुसलमानों से बात होती है, मैं कहता हूं हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, आप सब हिंदू है, कहते नहीं हम हिंदू नहीं, हम हिंदवी है, सिनोनिम है। क्यों? क्योंकि हिंदू शब्द सिनोनिम कहा मैंने, लेकिन इट इज नॉट ए नाउन, इट इज एन एडजेक्टिव। पंजाब में बाबर का आक्रमण हुआ, जिस स्थान पर आक्रमण हुआ वहां पर गुरु नानक जी मौजूद थे और उन्होंने उसका वर्णन लिखा है, कितना अत्याचार हुआ। उसमें एक बात वो कहते हैं कि हिंदू स्त्रियों का शील नहीं बचा, मुसलमान महिलाओं का की अस्मत नहीं बची। मुसलमान तो थे, कन्वर्टेड मुसलमान उस समय थे भारत के जो बने, क्योंकि 11 सुल्तान पहले हो गए थे बाबर के आने के, तो उसकी गाज तो सब पर गिरी। तो इसलिए मुसलमान और हिंदू 2 शब्दों का उपयोग किया है। संतों के वाणी में पहली बार वहां आया है, लोक भाषा में आता है तब संतों के वाणी में आता है। तो मुसलमान तो स्पेसिफिक है, पैगंबर, कुरान, अल्लाह, ये 3 मान्य नहीं है तो मुसलमान नहीं है, ये पक्का है। तो उनको एक नाम देकर बाकी सब लोगों को एक ही नाम में लपेट दिया, क्योंकि वहां बौद्ध भी थे, जैन भी थे, शैव, गणपत्य, शाक्त, वैष्णव सब थे।
लेकिन उनका अलग उल्लेख नहीं किया। उनके भी अपने देवता, गुरु, ग्रंथ ये सब है, लेकिन बाकी सबको एक शब्द में लपेटा हिंदू। क्यों? क्योंकि उनकी क्वालिटी है हिंदूनेस। वो क्या है? हिंदू कहता है सभी विविधताओं का स्वीकार और सम्मान है, अपने अपने विविधता पर श्रद्धापूर्वक चलो, दूसरों की विविधताओं का आदर सम्मान करो, मिलकर चलो, रास्तों को लेकर झगड़ा नहीं करना है। जितने लोग हैं उतने रास्ते हो सकते हैं। रुचि नाम वैचित्र्यात् रुजु कुटिल नाना पतयुताम नृणाम एको गम्या त्वमसि पयसा मर्णवैव। अनेक रास्ते होते हैं, लेकिन गंतव्य सबका है भगवान, तुम ही हो। जैसे पानी पृथ्वी पर पड़ने के बाद सागर में ही जाता है, वैसे ये सब रास्ते वहीं आने वाले हैं। भारतोद्भव सारी विचारधाराएं परस्पर विरोधी होने के बाद भी इस एक बात पर एकमत है, और वैसा उनका व्यवहार रहा है, सदियों से रहा है। इतिहास के सब उतार चढ़ाव में हिंदू समाज ने इस आचरण को सुरक्षित रखा है अभी तक। इस स्वभाव का नाम भारत है, इस स्वभाव का नाम हिंदुस्तान है। वो अपना नेशनल इथॉस है, इसलिए हम कहते हैं हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। हिंदू यानी पूजा पाती खान पान नहीं है, उसके ऊपर है, अबोव एंड बियॉन्ड। ये सबको पता है। 1940 तक तो सबके बोलने करने में ये बात थी। सेकंड वर्ल्ड वॉर के सारे एपिसोड ने कुछ इक्वेशंस बदल दिए, इसके कारण बाद में इसका विरोध वगैरह हुआ। नहीं तो सब लोग रविन्द्रनाथ ठाकुर कहते कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़कर मरेंगे नहीं, लड़ते लड़ते वो साथ रहने का रास्ता खोज लेंगे, और वो रास्ता अहिंदू नहीं होगा, पर्टिकुलरली हिंदू होगा। गांधी जी कहते हैं मैं कट्टर सनातनी हिंदू हूं, विवेकानंद कहते हैं, सभी हमारे लीडर्स लोग इनको जानते थे, लेकिन बाद में हुआ कुछ, चलो अलग बात है, लेकिन ये फैक्ट है। और इसलिए संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन, हिंदू की ये जो कल्पना है उसमें सब लोग आते हैं। वैसे अपने देश में इस डेफिनेशन के अनुसार 4 प्रकार के हिंदू ही है, अहिंदू कोई है नहीं। कुछ हिंदू है वो कहते गर्व से कहो हम हिंदू है, एक प्रकार है। दूसरे कहते हैं हम हिंदू है और हिंदू रहेंगे, लेकिन ये गर्व की बात छोड़ो भैया, क्यों करना, सभी है, हर एक आदमी कुछ ना कुछ है, हम हिंदू है। तीसरा प्रकार है वो कहते हैं भाई जोर से मत बोलो, घर में आओ, घर में बताएंगे हम हिंदू है, बाहर नहीं बोलेंगे क्योंकि कुछ नुकसान होता है। और चौथा है कि जो भूल गए वो हिंदू है, उनको भुला दिया जा रहा है, और अधिक लोग भूलकर उसमें शामिल हो, ऐसा किया जा रहा है। और इसलिए हिंदू समाज का संगठन कहते हैं तब जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो आसान है। परीक्षा में जैसे आसान क्वेश्चन पहले ही डाल करते, हिंदू कहने वालों का संगठन करो, उनका जीवन अच्छा दिखेगा, तो जिनका स्वार्थ उनसे करवाता है वो भी बदल जाएंगे, और जो भूल गए उनको भी याद आ जाएगा। और ये हो रहा है। ये प्लान लेकर सबके कार्यों को पूर्ण करने वाला कार्य इस नाते संघ शुरू हुआ। संघ हैज कम टू फुलफिल नॉट टू डिस्ट्रॉय, ऐसा हम कह सकते हैं। और 100 वर्षों की यात्रा हमारी बड़ी कठिन रही। उपेक्षा थी, विचार मान्य नहीं था किसी को, कोई प्रोमिनेंट लीडर संघ के पास नहीं था। डॉक्टर हेडगेवार वॉज नॉट ए वेल नोन पर्सन ऑल ओवर द कंट्री। नागपुर विदर्भ उधर मालूम था, महाराष्ट्र में मालूम था, बाकी जगह नहीं था। कार्यकर्ता नहीं थे, सब बालक ही मिले, किशोर तरुण। प्रचार का कोई साधन नहीं था, दरिद्री थे हम, और सरकार का विरोध रहता ही था। लेकिन सारी उपेक्षा को, सारे विरोध को स्वयंसेवकों ने अपने स्वावलंबन से और अपनी निष्ठा के भरोसे पार किया। संघ स्वावलंबी है, मेन मनी एम्यूनिशन, तीनों बातें संघ अपनी खुद तैयार करता है।
हमारा व्यक्ति निर्माण का ही काम है, हमारे कार्यकर्ता हम ही तैयार करते हैं। संघ को चलाने के लिए खर्चा वर्चा होता है, स्वयं सेवक साल में एक बार समर्पण करता है गुरु दक्षिणा, उसके भरोसे संघ चलता है। संघ चलाने के लिए एक फूटी कौड़ी भी हम किसी और से लेते नहीं, स्वयं सेवक करते, स्वेच्छा से समर्पण करते हैं। ठीक है, पहले हम छोटे थे तब बहुत ही कठिन था, खर्चा चलता नहीं था, भूखे रहते थे कार्यकर्ता, पैदल जाते थे, साइकिल चला के जाते थे, ट्रेन में रहते थे, बाहर गांव गए संघ को समझाने के लिए अपना करियर छोड़ के, तो उनके भोजन की व्यवस्था नहीं थी, रहने की व्यवस्था नहीं थी, तो रात को यार्ड में पड़ी ट्रेन में सोते थे। किसी को ध्यान में आता था कि ये पढ़ा लिखा युवक है, देश के लिए कर रहा है, इसके भोजन की व्यवस्था नहीं, तब उसके भोजन की व्यवस्था होती। आज तीसरी पीढ़ी काम कर रही है, उसने ये दिन देखे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, संघ बड़ा हो गया तो भी जुलाई अगस्त में हमारी जो गुरु दक्षिणा होती है, तो मार्च से जुलाई अगस्त तक थोड़ा कठिन ही रहता है। वो अच्छी बात है, क्योंकि पैसे का प्रभाव नहीं है, पैसे का अभाव भी नहीं है, ऐसी स्थिति में हम है। बाकी जो सेवा कार्य वगैरह समाज के काम करते हैं, उसके लिए हम समाज का सहयोग लेते हैं, लेकिन संघ चलाने के लिए बाहर से कुछ नहीं लेते। हमारे साथ हम खुद खड़े करते, नागपुर में एक बड़ा परिसर खड़ा किया, सब स्वयंसेवकों ने जमा किया। मैं विद्यालय में विद्यार्थी था, स्कूल में जाता था, तो वहां डॉक्टर हेडगेवार का स्मारक खड़ा हो रहा था, तो मुझे याद है शाखा में एक डिब्बा आता था रोज, कार्डबोर्ड बॉक्स विथ अ स्लॉट। उस समय बच्चों के हाथ में पैसे देते नहीं थे, लेकिन कभी कभी कुछ मिल जाता था, तो जमा करके हम उसमें डालते, डॉक्टर हेडगेवार का स्मारक बन रहा है। अभी वो परिसर बड़ा किया, तब भी पूरे देश से स्वयंसेवकों ने कंट्रीब्यूट किया। ऐसा स्वावलंबन से संघ चला, कठिनाई में चला, 2 बार 3 बार प्रतिबंध आए, स्वयंसेवकों पर हमले हुए, हत्याएं हुई, शाखाओं पर हमले हुए, आज भी होता है थोड़ा थोड़ा। वो बहुत बिटर अपोजिशन, किसी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को इतना सहन नहीं करना पड़ा है, लेकिन ये सहन करके भी आज भी वो विरोध होता है, लेकिन वो इनइफेक्टिव है। लेकिन वो सहन करके भी समाज के प्रति किसी प्रकार का क्रोध वगैरह मन में न रखते हुए, इंस्पाइट ऑफ दिस सबको अपना मानकर स्वयंसेवक काम कर रहे, और अनुकूलता में भी ऐसे ही चलेंगे, क्योंकि संघ को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, न पॉपुलैरिटी चाहिए, न पावर चाहिए, न रिकॉग्निशन चाहिए। हम तो तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे, इस प्रकार का काम करते हैं। हमको ये चाहिए इतिहास में लिखा जाना कि भारत का समाज ऐसा था, उसने भारत को बड़ा किया, भारत में संघ था, उसने समाज को तैयार किया और बड़ा किया, ये नहीं चाहिए। हम प्रार्थना में कहते हैं, विजेत्री चन संहता कार्य शक्ति विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम समर्था भवतु। हम समर्थ बन रहे अपने समाज को परम वैभव संपन्न करते हुए, उसके धर्म का संरक्षण करते हुए ये करना है, और सामूहिक शक्ति के आधार पर करना है। हमारी सामूहिक शक्ति, हम कौन? तो प्रार्थना की दूसरी कड़ी में उसका उत्तर है, वयम हिंदू राष्ट्रांग भूता। हिंदू राष्ट्र के सब हिंदू घटक है, अवयव है, उन सबकी सामूहिक शक्ति से ये होना है, और इसलिए जो होगा उसका क्रेडिट उनको मिलेगा, पूरे समाज को मिलेगा। इसी कल्पना को लेकर हम काम कर रहे हैं, और इसलिए 100 साल हो गए, लेकिन अभी और बढ़ना है। 142 करोड़ की जनता है अपनी, हमारे स्वयंसेवकों की संख्या मैक्सिमम 70, 1 लाख 80 लाख एट द मोस्ट होगी। पता नहीं, रोज स्वयंसेवक बनते रहती, इसलिए हम रजिस्टर वगैरह नहीं रख पाते। कम से कम 3 करोड़ तो होना पड़ेगा, 5 करोड़ तो होना पड़ेगा। हमारे देश में
10-10, 12 विलेजेस का एक ग्रुप, उसको मंडल कहते हैं, तो ऐसे 60,000 मंडल है। हम अभी 38,000 तक है, डेली और वीकली। हमारे शहरों की 10-10 हजार की एक बस्ती, ऐसा मानेंगे तो अबाउट 47,000 बस्ती है। हम अभी 23 में है। काम बढ़ना है, और काम केवल संघ का बढ़ने से नहीं होगा, समाज को काम करना है। तो समाज को लीड करने वाली सज्जन शक्ति है। यद्यद आचरति श्रेष्ठा तत्तदेवेतरो जना, ऐसा गीता में कहा है। तो ये जो समाज के महाजन है, जो ओपिनियन मेकर्स है, जो समाज में रोल मॉडल बने हैं, सज्जन है। भारत में जितना बुरा होता है ऐसा हमारे कान पर आता है या मीडिया में आता है। मीडिया में तो पॉजिटिव कुछ हुआ तो न्यूज नहीं बनती, निगेटिव ही न्यूज बनती है। लेकिन जितना हमको बुरा पता चलता है, उससे कम से कम 40 गुना ज्यादा अच्छा हो रहा है। 40 गुना ज्यादा करने वाले अच्छे लोग हैं। और ये अच्छे लोग गरीब से गरीब परिवार से लेकर अमीर से अमीर परिवार तक सब स्तरों में है, सब जातियों में, सब भाषाओं में, सब प्रांतों में ये सज्जन है। तो वो लीड करेंगे तब समाज करेगा। तो एक और समाज में उनको फॉलो करने का वातावरण बनाना पड़ेगा, दूसरी ओर इस सज्जन शक्ति का एक क्लोज नेटवर्किंग होना चाहिए, जिससे उनको पता रहे कि हम अकेले नहीं है, अच्छा सोचने करने वाले बहुत लोग हैं। तो वो परस्पर कॉम्प्लीमेंट्री बनकर चल सकते हैं। तो इस कैलिबर के कार्यकर्ता शाखाओं में निर्माण करना और उनके द्वारा ये सज्जन शक्ति जागरण करना, ये दूसरी बात है जो हमारे सामने है 100 वर्षों के निमित्त। तीसरी बात है कि पूरे समाज में एक आचरण का परिवर्तन होना चाहिए। देश की बात तो सब समझते करते हैं, लेकिन जात पात का भेद भी करते हैं, स्वार्थ भी चलता है। ये जाना चाहिए, उसके लिए आदत बदलनी चाहिए। आदत बदलने का काम तो शाखा में होता है, लेकिन शाखा सब तक पहुंचने में शाखा का अपना एक स्पीड है। हमारी साइकिल है, वो रॉकेट के स्पीड से नहीं चल सकती। साइकिल का स्पीड हम इंक्रीज करेंगे ज्यादा से ज्यादा 30 किलोमीटर पर आवर, इतना ही जाएगा। उससे आगे जाएगा तो साइकिल टूट जाएगी। और दूसरा व्हीकल नहीं है इस काम के लिए, दूसरी पद्धति नहीं है। पूरी दुनिया के लोग आजकल संघ को देखने के लिए आते हैं, पांचों महाद्वीपों के, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब देखते हैं, बहुत प्रश्न पूछते हैं। अंत में एक प्रश्न सबका कॉमन रहता है, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, सब लोग, अफ्रीकन, कि हमारे यंग जनरेशन के लिए हम संघ जैसा कुछ करना चाहते हैं, तो आप हमको ट्रेनिंग देंगे क्या, ऐसा पूछते हो। इसका मतलब दूसरी मेथड नहीं है, लेकिन समय के साथ होड़ है। इसलिए कुछ कार्यक्रम हमने सोचा है जिसके आचरण से जीवन में परिवर्तन आता है। और वो कार्यक्रम बहुत आसान है, बिन खर्चे का है, हर आदमी संकल्प करके तुरंत कर सकता है, हर परिवार, हर मनुष्य वो कर सकता है। उसके 5 इनिशिएटिव्स है, 5 पहल है। पहली है सामाजिक समरसता, भेद मुक्त दृष्टि से एक दूसरे के साथ आचरण करना। थियरी तो सबको पता है, भाषण भी दिए जा सकते हैं, हम कार्यक्रम भी करते हैं, परंतु रोज के जीवन में ऐसा करना है तो एक काम करना पड़ेगा कि हमारा जितना रीच है, जितने एरिया में, भौगोलिक एरिया में हम घूमते फिरते हैं, हमारा परिचय है, हमारा नाम है, काम करते हैं, उसमें जितने प्रकार के हिंदू दुनिया मानती है, उन सब प्रकारों में मेरा एक एक दोस्त होना चाहिए। और उन सब प्रकारों में एक एक फैमिली मेरे फैमिली की फ्रेंड फैमिली होनी चाहिए। कुछ पैसा खर्चा करना नहीं ज्यादा, कुछ समय खर्चा करना नहीं ज्यादा, हम जीवन जी रहे उसी में ये करना है। और आसानी से दोस्ती जोड़ना आसानी से हो सकता है, परिचय करना आसानी से हो सकता है, आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना साथ में, सुख दुख में भाग दौड़ करते ही हम वही करना है। तो ये समरसता की बात लिप सर्विस नहीं रहेगी, वो एक्चुअल इट विल बी ए फैक्ट, रियलिटी।
और जब रियलिटी अनुभव में आती है तो समाज का आचरण बदलता है। इसलिए ये करना, अगर ऐसे लोगों का अच्छा प्रमाण हो गया, समाज से बात करने की उनकी ताकत हो गई, तो समाज को समझा बुझा के मंदिर, पानी, स्मशान सब हिंदुओं के लिए एक, ये करना, ये सेकंड स्टेप है। ऐसे ही आजकल हम बड़े चिंतित हैं, ड्रग्स का क्या होगा, ड्रग्स बहुत आ रहे, संस्कार बिगड़ रहे, नई पीढ़ी भाग रही है। देखिए, ये हमारी नई पीढ़ी है, हमने तैयार की है, तो उसको तैयार करने में हमारी कमी रही। तो अब जागो, एक एक परिवार ने अपने नई पीढ़ी से बात करनी चाहिए, जो आज बंद हुआ है मोबाइल के कारण। माता पिता कमाने के लिए बाहर जाते, घर आते, बच्चे स्कूल में से घर आते हैं, थोड़ा सा खा के सब लोग मोबाइल खोलकर बनते, एक दूसरे से बात नहीं होती। इसलिए हफ्ते में एक दिन नियत समय पर घर के सब लोग घर में रहो। 2x2 परिवार है तो 4 ही लोग रहेंगे, कोई बात नहीं। दूध पीते बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक सब रहेंगे, श्रद्धा अनुसार भजन करेंगे, बाद में घर में बनाया हुआ देशी भोजन करेंगे अच्छी तरह से, और फिर 4-5 घंटा गपशप करेंगे। गपशप के विषय 3, अपनी कुल रीति क्या है, हमारा परिवार है किस कुल से आता है, उस कुल की रीति क्या है, उसके पूर्वजों ने क्या अच्छे काम किए हैं, उनकी क्या अच्छी आदतें बातें हैं, वो हमें है कि नहीं, जो काल सुसंगत बातें हैं। और कुछ उसके उल्टा हो गया है तो उसको निकालना कैसे, डिक्टेट नहीं देना, ऑर्डर नहीं करना, मार्गदर्शन नहीं करना, डिस्कस करना, सबका मिलके, बच्चे भी बोलेंगे, पूछेंगे, बताना पड़ेगा, सबका मिलके कॉन्सेंसस बनता है, तब उसको परिवार में लागू करना। ऐसे ही दूसरा विषय, हमारा देश क्या है, हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे देश का मैसेज क्या है दुनिया के लिए, उसके अनुरूप आचरण कैसे रहा हमारे पूर्वजों का, उन पूर्वजों की कीर्ति के अनुरूप हमारे जीवन में क्या है, उससे उल्टा क्या है जो निकालना चाहिए, जो कॉन्सेंसस बनेगा वो लागू करना। तीसरा है, मैं रोज मेरे लिए पैसा और समय खर्चा करता हूं, मैं रोज मेरे परिवार के लिए पैसा और समय खर्चा करता हूं, मैं रोज, ये दोनों जिसके कारण स्टेबल है, उस देश समाज धर्म के लिए रोज क्या करता हूं, कितना समय देता हूं, रोज कितना खर्चा उसके लिए उस दिन करूं या आप बाजू रखो, एक साथ करूं। सबने विचार करना, सबने छोटा संकल्प को ही लेना, उसको पूरा करना। इसको हम कहते हैं मंगल संवाद। हर परिवार में ये मंगल संवाद तुरंत शुरू हो सकता है। आपको लगा इसको करना है तो आज आप शुरू कर सकते हैं, सबसे बात करके चल पड़ा तो इसके बहुत अच्छे परिणाम होते हैं, अनुभव है, क्योंकि ये अभी पहली बार नहीं बता रहे, हम इसको कर चुके हैं पिछले कई साल, तो इसका परिणाम होता है। नई पीढ़ी अवेयर रहती है अपने लीगेसी के बारे में, उनका आचरण वैसा बनता है, शुरू कर सकते हैं तुरंत। तीसरा पर्यावरण का है, पर्यावरण के बारे में पॉलिसी की एक बात है, तो उसके लिए संगठन है वो करेंगे, परंतु अपने घर में हम कर सकते हैं ना, पेड़ लगाओ, प्लास्टिक हटाओ, पानी बचाओ। नहीं तो नल टपक रहा है, ध्यान ही नहीं, प्लम्बर को बुलाओ, उसको ठीक करो। एक एक बूंद टपकती है, 24 घंटे में एक नल से कितना पानी जाता है, हिसाब करेंगे आपको आश्चर्य लगेगा। शावर में घंटा भर खड़े हैं, क्यों भाई? शरीर को स्वच्छ करने का काम 15 मिनट में भी हो सकता है। छोटी छोटी बातों में पानी बचाना, पानी मिलता है तो आधा ग्लास देना, पिएंगे और चाहिए और मिलेगा, पूरा ग्लास लिया, आधा पी लिया, बाकी छोड़ दिया तो उस पानी का उपयोग नहीं, वेस्टेज होने वाला है। छोटी छोटी आदतें, सिंगल यूज प्लास्टिक कम से कम नहीं उपयोग करना, वृक्षारोपण के कार्यक्रम वगैरह होते, चढ़ बढ़ के भाग लेना उसमें, लेकिन अपने घर में भी, आजकल तो गमले में खेती होती है, छत पर खेती होती है, हरियाली करना, सब्जी वब्जी उगाना, घर के भगवान की पूजा के फूल अपने घर में उगाना, विषम मुक्त अन्न मिलता है उसके कारण अपने, तो ये पर्यावरण का काम है।
फिर स्वबोध की बात है, हम अपना देश है, उसकी एक पहचान है, उसका एक इतिहास है, और वो कई मामलों कई साधनों से हमारे पास आता है। उसमें एक है भाषा, दूसरा है भूषा वेश, तीसरा है अपना भजन, चौथा है अपना भवन, उसका रख रखाव, उसमें चित्र, फिर है भोजन, वो सॉफ्ट पावर है हमारी, हमारा अपना खाना, पिज्जा वगैरह नहीं, सांबार भात अपना खाना है, उसका एक मान है दुनिया में, उसकी एक ताकत है दुनिया में। और भ्रमण, हम प्रवास के लिए जाते हैं, दुनिया देखते हैं, अच्छा है, देखना चाहिए, पेरिस जाओ, सिंगापुर जाओ, और कहाँ कहाँ घूम के आओ, लेकिन कभी चित्तौड़ भी जाओ, कभी रायगढ़ भी जाइए, कभी देख के आइए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहाँ कहाँ लड़ाई, या कैसी लड़ी, चमकौर का रण कहाँ हुआ। अपने बंगले के पीछे झुग्गी झोपड़ी है, गरीब लोग रहते, अपने लोग है वो, भारत माता के पुत्र अपने भाई है, वो कैसे रहते, क्या करते, जाकर देख के आना। ये स्वबोध के आधार पर भ्रमण है। अपने घर के चौखट के अंदर अपनी भाषा बोलना, अपनी मातृभाषा बोलना। बेडरूम के अंदर पिलो है, उसका कवर है, उस पर हम ही मत्था टेकने वाले रोज, कोई यूरोपियन तो नहीं आएगा, वहां वेलकम की क्या जरूरत है, सुस्वागतम हो सकता है ना। कई बातें ऐसी है अपने जीवन में, अपना हस्ताक्षर हम करते हैं, वो मातृभाषा में क्यों नहीं करते। हस्ताक्षर का तो कोई नियम नहीं है, अंग्रेजी में होना चाहिए, मेरा हस्ताक्षर मैं पढ़ सकता हूं, काम हो गया। ऐसी छोटी छोटी बातों में स्वबोध के आधार पर आचरण करना, भाषा भूषा भजन भवन भ्रमण भोजन, और स्वदेशी पर चलना, जो अपने घर में बनता है बाहर से नहीं लाना, बाहर से इसलिए लाना कि किसी का रोजगार उसके आधार पर चलता है। अपने यहाँ भोगी होती थी संक्रांति के पहले, बाद में तो घर से बाहर निकलते थे लोग बर्तन लेकर, उस दिन शाम को मिट्टी के बर्तन होते थे, गांव के बाहर जाकर फोड़ देते थे, वापस आते समय कुम्हारों के मोहल्ले से फिर से नए बर्तन खरीदते थे, बर्तन फोड़ के बर्तन खरीदते थे, एक साल में एक बार कुम्हारों का रोजगार निश्चित हो जाता। इसलिए घर के बाहर से कुछ लाना है आपको, तो अपने आदमी का रोजगार चलाना है, उसी लिए लाना। ऐसे करना, जो अपने देश में बनता है वो लेना, जो अपने देश में नहीं बनता बिना उसके काम चलाना। अपने जीवन में जिसके बिना अपना काम चल सकता है, ऐसी बहुत सी बातें आप सोच कर देखिए, आपको आश्चर्य लगेगा। हाँ, जिसके बिना काम नहीं चलता, जीवन आवश्यक वस्तु है, वो बाहर से खरीद सकते हैं। पॉलिसी लेवल पर हम कहते हैं कि खरीदना है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लेन देन तो होना ही है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होना ही है। स्वदेशी इज नॉट आइसोलेशन, लेकिन वो व्यापार हमारी इच्छा से होगा, हमारे निर्णय से होगा, किसी के दबाव के नीचे होगा। जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं वैसा नहीं होगा। ये स्वदेशी है, स्वबोध के आधार पर जीना। और पांचवा और आखिरी है नियम कानून का पालन। हमारा राष्ट्रीय नियम है हमारा संविधान, संविधान की प्रस्तावना, नागरिक कर्तव्य, संविधान में मार्गदर्शक तत्व, नागरिक अधिकार, ये 4 चैप्टर बीच बीच में घर में बच्चों को बिठाकर, सबको बिठाकर उनके सामने पढ़ने चाहिए। समझाने के लिए थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए। जैसे हम कभी कभी रामायण पारायण करते, महाभारत का पारायण करते, धार्मिक ग्रंथ है। संविधान हमारे धर्म का आधुनिक प्रगटीकरण है, आविष्कार है। समय को पहचान कर, देश समाज की आवश्यकता ध्यान में रखकर, वही 4 सत्य करुणा शुचिता तपस के आधार पर, क्योंकि वो मन में था सबके, सब हिंदू ही थे,
उस मन के आधार पर विचार करते हुए जो उत्पत्ति हुई वो संविधान है, वो हमारा धर्म है। उसके आधार पर सोचना, उसके उसके तहत ही कानून बने, नियम बने। कुछ कुछ गलत बन जाते तो हम बदलना चाहते तो कैसे बदलना, उसका प्रोसीजर भी है, कोई रिजिड नहीं है, फ्यूचर जनरेशंस के हाथ बांधे नहीं है, स्कोप है उसमें। उन नियमों का पालन करना, बदलने हैं तो भी जब तक है तब तक पालन करना, बदलने के लिए नियमतः ही प्रयास करना। कानून मंजूर नहीं इसलिए बस के कांच फोड़ दिए, कानून मंजूर नहीं इसलिए जलते टायर फेंक दिए, रास्ते बंद किए, ये सब नहीं है। वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के वो भाषण पढ़िए तो वो भी समय समय पर पढ़ने लायक है अपने घर में। नागरिक अनुशासन कैसा होना चाहिए। भगिनी निवेदिता कहती थी कि नागरिक अनुशासन और नागरिक संवेदना का पालन ही स्वतंत्र देश में देशभक्ति का दैनंदिन रूप है, वो करना चाहिए। और कुछ नियम है जो कानून में नहीं है, उन नियमों का पालन नहीं किया तो सजा नहीं होगी। बड़ों के सामने झुककर नमस्कार करो, नहीं करेंगे तो आपको अरेस्ट नहीं होगा, कोई सजा का प्रावधान, गुनाह नहीं है। लेकिन ऐसा करने से हम अपने ईगो को नियंत्रित कर सकते हैं, ये उसका लाभ है। अपने स्वभाव में एक अच्छी आदत आ जाती है। ऐसे परंपरा में जो रिलेवेंट और बेनिफिशियल है उसका भी पालन करना, इसको कहते हैं नागरिक बोध, नागरिक अनुशासन। ये सब लोग कर सकते हैं, इसके लिए कोई खर्चा नहीं करना है, जो हम कर रहे हैं उसी में ये सब कुछ करना है। अभी स्वयंसेवक इसको कर रहे हैं और शताब्दी के बाद थोड़ा 100% तो एकदम नहीं होगा, आदमी 5-10 साल लगेंगे होने के लिए, लेकिन 10 कदम आगे जाने के बाद हम समाज को कह सकते कि आप भी चलो, तो 2 कदम वो भी आगे आएंगे। शताब्दी के बाद ये हम करने वाले हैं। ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स लेकर हमारा 100 साल के बाद का एक हमने रोड मैप तय किया है, क्योंकि 100 साल होना ये कोई सेलिब्रेशन की बात नहीं। इतना समय क्यों लगा, ये प्रश्न आ सकता है। लगा, जो था, लेकिन आगे कैसे जाना है, संपूर्ण समाज को संगठित करना है, भारतवर्ष को एक उत्तम देश बनाना है, और भारतवर्ष का जो मैसेज है जो दुनिया को आज चाहिए वो देने लायक उसकी स्थिति बनानी है। और ये अकेला संघ भी नहीं कर सकता, संघ भी इसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकता, क्योंकि नेता नारा नीति पार्टी अवतार जैसे नहीं कर सकते अकेले, वैसे अकेला संगठन भी नहीं कर सकता। ये पूरे समाज को लगना पड़ेगा, तो बाकी सब उपयोगी होंगे। तो पूरे समाज को ही संगठित करने की दिशा में आगे बढ़ना है। अभी सौभाग्य से काम बड़ा हो गया है, समाज का विश्वास है, लोग हमको सुनने के लिए तैयार है, हमसे सुना करने के लिए तैयार है। तो इस दृष्टि से ये कार्यक्रम बनाकर हमको आगे जाना है, और आगे जाना है इसलिए ये आपको भी बताना है, क्योंकि संपूर्ण समाज में आप भी है, और आप तो पीयर लीडर्स है, महाजन है, महाजनों ये न तस्य पंथा, ये नियम है। और इसलिए संघ की कुछ संघ के फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं, ताकि आपका संघ के बारे में जो भी विचार हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, वो परसेप्शन या प्रोपोगंडा के आधार पर नहीं होना चाहिए, फैक्ट्स के आधार पर होना चाहिए। और इस आगे के चढ़ाई में आप सब लोगों का साथ चाहिए, संघ को बड़ा करने के लिए नहीं, संघ को पॉपुलर बनाने के लिए नहीं, देश का भाग्य बदलना है। इसलिए अपने देश का भाग्य बदलना हमारी सबकी आवश्यकता है, अपने देश की नियति है और विश्व की अनिवार्य आवश्यकता है। और वो काम हो ऐसा समय आया है। चारों तरफ की वार्ताएं सुनते हैं, जाने आने वालों को पूछते हैं, तो उनका अनुभव यही बताता है कि अब भारत का समय आ गया है, भारत को उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। और हमारी दृष्टि से दूसरा कोई इसका रास्ता नहीं है, ये सब करना पड़ेगा। इसलिए आपके सामने ये बातें थोड़ा लंबा भाषण करके मैंने रखी है।
आप इसको सोचिए, आपके प्रश्नों में से कई का उत्तर इसमें आ गया होगा, फिर भी आपके प्रश्न पढ़े जाएंगे, तब उसका उत्तर मैं तुरंत ही